ग्राउंड रियलिटी में सबसे पहले बात करते हैं रशिया की, जिस उससे जुड़ी ये स्टोरी जो है वो भारत से है। ओडिशा के होटल में 2 रूसी नागरिकों की मौत पर विपक्ष केंद्र सरकार पर हमलावर है। इस बीच कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने एक वीडियो ट्वीट किया। वीडियो में वो केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। मनीष तिवारी ने कहा कि रूसी नागरिकों की मौत सामान्य नहीं हो सकती। इससे पहले रूसी दूतावास ने कहा था कि मामले में कोई आपराधिक पहलू नहीं देखा गया है। आपको बता दें कि मृत लोगों में से एक रूसी टाइकून पावेल एंटोव था, जिसकी होटल के तीसरी मंजिल से गिरकर मौत हो गई थी। पावेल उन लोगों में से एक शख्स थे जिन्होंने यूक्रेन पर रूस के आक्रमण की खुलकर आलोचना की थी। A Russian oligarch, a war critic, an offbeat hotel, a colleague who dies under mysterious circumstances, a convenient window, another death, a cremation in India of 2 Christians rather than a burial, the body is not repatriated to their native country. If this is not an unnatural death, then I did not go to law school. तो अब आपको बताते हैं कि आखिर ये 2 शख्स कौन हैं जो कि ओडिशा के होटल में मृत पाए गए हैं। ओडिशा में मृत पाए गए दोनों रूसी नागरिकों की पहचान पावेल एंटोव और व्लादिमीर बुडानोव के रूप में हुई है और ये दोनों पर्यटक के तौर पर भारत की यात्रा पर आए थे। प्रथम दृष्टया में इसे हादसा बताया जा रहा है और आखिर ये लोग कौन हैं, इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरी सहयोगी साम्या इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुकी हैं न्यूज रूम से। साम्या, मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को बताएं आखिर ये 2 लोग जो कि ओडिशा के होटल में जिनका देहांत हो गया, मिस्टीरियस डेथ बताया जा रहा है, कई सवाल उठाए जा रहे हैं, आखिर ये 2 लोग हैं कौन? जी बिल्कुल। और इसी के ऊपर कांग्रेस के सांसद मनीष तिवारी ने भी बहुत सारे सवालिया निशान लगाए हैं। एंड लेट मी टेल यू व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड। द क्वेश्चंस दैट आर बीइंग रेज्ड बाय द कांग्रेस एमपी मनीष तिवारी इज द फैक्ट दैट ही इज क्वेश्चनिंग that there is more than what meets the eye in the death of these 2 Russian. They weren't just tourists, they were senior members of the parliament, and Panvel was definitely one of the richest diplomats. For him to be found dead in these mysterious circumstances, even though the hotel authorities are calling it to be a case of a suicide or an accident because of which he fell off the window, it doesn't really cut ice, is what Mr. Manish Tiwari is saying in that video that he tweeted a short while ago. Well, he is raising questions about, this particular hotel in Odisha is an offbeat hotel. There can be 2 deaths back to back in less than 3 days. Both of them happen to be nationals of Russia. One of them, Panvel, was definitely somebody who was critical of the war that Russia has unleashed against Ukraine, and he was a vocal critic of the Russian president. All of this is what Mr. Manish Tiwari is trying to say is doesn't cut ice. There is more than what meets the eye, and he also questions that why Christians were not buried. Why was there no burial service? Why were their bodies not repatriated? Why were they cremated in India? These are some very worrying questions that needs to be answered not only from the state government's end but also from the central government's end, because they definitely came here in the knowledge of the central government per se. He was here to celebrate his 65th birthday on 25th December, Panvel, after which 2 days later his body was found in a pool of blood. Now, although the hotel authorities are maintaining that it was an accident or he committed suicide, the investigation is still going on. The police hasn't really come to any conclusive evidence that they have come across so far to try and call it either a suicide or a death or a murder for that matter. But it raises question, it raises eyebrow, and there has to be a lot more answering that needs to be done, not only to Mr. Manish Tiwari, who is a Congress MP, to the Russian counterpart and the world at large, because he was a wealthy diplomat who was in India, and then he dies 2 days apart from his friend who was also present over here. It does beg some very, very straight answers from the government. जी, बहुत बहुत शुक्रिया साम्या आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि
ये जो दो लोगों की देहांत हुआ है, मौत हुई है, और कांग्रेस आरोप लगा रही है कि काफी मिस्टीरियस है। मनीष तिवारी ने खास तौर पर ट्वीट भी किया और उन्होंने सवाल उठाए हैं इस डेथ पर, क्योंकि इनमें से एक एमपी है और बड़े बिजनेस टाइकून है रशिया के। और इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ दुष्यंत नागर जी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, वो हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। और इसके साथ ही बीजेपी नेता डॉक्टर टीना कपूर शर्मा हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुकी हैं। डॉक्टर टीना कपूर शर्मा जी, सबसे पहले मैं आप ही के पास आना चाहूंगी, क्योंकि कांग्रेस सीधे तौर पर नहीं, अप्रत्यक्ष रूप पर जरूर सेंटर पर हमला कर रही है। मनीष तिवारी कह रहे हैं कि आखिर किस तरीके से उस विंडो से उनका जंप करते हैं, वो उस पर भी सवाल उठा रहे हैं। मनीष तिवारी सवाल उठा रहे हैं कि आखिर क्यों उनकी बॉडी को वापस रशिया नहीं भेजा गया। अम, जी, आपने सही कहा कि मनीष तिवारी इस पे सवाल उठा रहे हैं। इनफैक्ट उन्होंने वीडियो बनाया है और वीडियो में डाला है कि कन्वीनिएंट विंडो है, एक चाय का कप है और 2 दिन पहले उनके एक फ्रेंड की डेथ हुई। तो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि मनीष तिवारी एक पॉलिटिकल इसको बाउंस बैक मैं कहूँगी, बिकॉज़ पहले भी उन्होंने कई बार सवाल उठाया है और उनको बाउंस बैक हुआ है। उन्होंने पहले कई चीज़ों पे सवाल उठाए। उनके ट्वीट्स बहुत ही बहुत ही अजीब से होते हैं और वो मुझे लगता है कि कई बार ऐसी चीज़ों पे सवाल उठाते हैं जो देश की संवेदना के परे होता है। अम, और मनीष तिवारी के सवाल पे जी मैं डॉक्टर ज़्यादा नहीं टीना जी, जाना मैं आपके चाहूँगी, पास लेकिन वापस आना ओवैसी चाहूंगी। और अब हम अपनी अहम स्टोरी पर आते हैं। आपको बता दें कि रशिया के दो नागरिक हैं जिनकी ओडिशा के होटल में देहांत हो गया, जिस पर ऑपोजिशन ने सवाल उठाए हैं। और हमारे साथ चर्चा के लिए लगातार दुष्यंत नागर जी, जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, और डॉक्टर टीना कपूर शर्मा बीजेपी लीडर हैं, जुड़ी हुई हैं। आपके पास मैं अब आना चाहूंगी दुष्यंत नागर जी, क्योंकि जिस तरीके से मौत हुई है इन दो नागरिकों की, पहली बात ये आम नागरिक नहीं है, बिजनेस टाइकून है और एमपी हैं। और ऐसे में कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। और जब से रशिया यूक्रेन की वॉर शुरू हुई है, ये पहले बिजनेस टाइकून नहीं है जिनका देहांत इस तरीके से हो गया हो। तो अब क्योंकि ये भारत में हुआ है, तो इसलिए अब कांग्रेस सवाल उठा रही है। आपका इस पर क्या कहना है? क्योंकि वो कह रहे हैं कई सवाल हैं जिनके अभी जवाब नहीं मिले, उनकी बॉडी को वापस रशिया में क्यों नहीं भेजा गया? देखिए, सारे सवाल वैध हैं। कोई मनीष तिवारी जी ने गलत बात नहीं कही है और दोनों के दोनों जो सांसद महोदय थे और जो व्यापारी वर्ग के एक बड़े व्यक्ति थे, दोनों ने युद्ध के खिलाफ आवाज उठाई है। और युद्ध की भर्त्सना तो भारत भी करता रहा है, हमारा ऑफिशियल स्टैंड है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी रूस यूक्रेन युद्ध को रोकने की अपील करी है। और ये उससे भी बड़ी बात मैं कहना चाहता हूं कि भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि को यह मामला प्रभावित करता है। भारत को सेफ और सुरक्षित समझ के कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति अपना बर्थडे मनाने के लिए, अपनी छुट्टियां मनाने के लिए, क्रिसमस मनाने के लिए भारत में आता है, कि भारत की दुनिया में एक ऐसी छवि है कि जहां पे किसी भी राष्ट्र में रहने वाला व्यक्ति, चाहे वो सरकार का समर्थक हो या आलोचक हो, उसके जीवन को सुरक्षा प्रदान की जाती है, उसको सुरक्षा दी जाती है। और ऐसी परिस्थितियों में, विवादास्पद स्थितियों में, और प्रथम दृष्टया ये लग रहा है कि उनके साथ कोई अनहोनी हुई है, घटना हो जाती है, 2 लोगों की 2 दिन के अंदर मृत्यु हो जाती है, और उसके ऊपर सवाल खड़े करना विपक्ष का बिल्कुल नैतिक रूप से है। और सरकार से भी हमारा ये निवेदन, ये अनुरोध रहेगा कि इसकी व्यापक रूप से छानबीन होनी चाहिए। और अगर किसी साजिश के तहत ये हत्याएं की गई हैं, तो दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलने का काम सरकार को करना चाहिए। और ये भी चिन्हित करना चाहिए कि ऐसे लोग और भी अगर जुड़े हुए भारतवर्ष के अंदर हैं, तो उनकी सुरक्षा का भी पुख्ता इंतजाम। जी जी। डॉक्टर टीना जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। डॉक्टर टीना जी, जिस तरीके से दुष्यंत नागर जी कह रहे हैं कि काफी रहस्यमयी मौत हुई है इन दोनों की, तो ऐसे में जांच जरूर होनी चाहिए। हालांकि रशियन एम्बेसी ने यह जरूर कहा है कि कोई क्रिमिनल एंगल नहीं है इसमें, लेकिन क्या जिस तरीके से कांग्रेस सवाल उठा रही है, उसके बाद इस मामले की जांच होगी पुख्ता तौर पर?
डॉक्टर टीना जी, आपकी हम तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। आप प्लीज अनम्यूट कीजिए खुद को, तब हम आपको सुन पाएंगे। जी, तो टीना जी से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। इस बीच दुष्यंत नागर जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। दुष्यंत नागर जी, कई सवाल जो हैं जिनके जवाब अभी तक हमें नहीं मिल पाए हैं। ये सवाल ये है कि वो ओडिशा में क्या करने आए थे, और क्योंकि ओडिशा जो है वो टूरिस्ट स्पॉट भी नहीं है भारत में इतना बड़ा कि जहां पर आ जाएं, लेकिन कहा जा रहा है कि वो पूरे टूरिस्ट ग्रुप के साथ यहाँ पर दोनों रशियन नागरिक आए थे, और जिस तरीके से जल्दबाजी से उनका क्रिमेशन भी किया गया, और उसी को लेकर अब सवाल उठे हैं कि वापस भेज देना चाहिए था। आखिर रूल बुक क्या कहती है कि क्योंकि वो एक एमपी थे और बिजनेस टाइकून भी थे, ऐसे में क्या प्रोसीजर होना चाहिए था? जी, उनको दूतावास और उनके परिजनों को सूचित किया जाना चाहिए था। उनकी कंसर्न से ही आगे की सारी कार्रवाई होनी चाहिए थी। ये ये एक कोई छोटा मामला नहीं है। ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मामला है और इसके गंभीर परिणाम भविष्य में हो सकते हैं। भारत के पर्यटन को भी नुकसान पहुंच सकता है। भारत का पर्यटन जो जॉब्स और रेवेन्यू देने के लिए एक बड़ा हिस्सा है भारत की अर्थव्यवस्था में, जब सांसद यहाँ पे सुरक्षित नहीं है तो आम आदमी के मन में खौफ बैठ सकता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भारत की छवि धूमिल हो सकती है। हम रशिया हमारा मित्र है, कोई रशिया गवर्नमेंट हमारी मित्र नहीं है, रशिया देश हमारा मित्र राष्ट्र है। तो वहां के नागरिकों के प्रति हमारी जिम्मेवारी है। हमारी मित्रता रशिया देश के साथ है, सिर्फ पुतिन के साथ नहीं है। राष्ट्रपति तो आते रहते हैं, जाते रहते हैं, और भारत के और रूस के जो रिलेशन है वो तो दशकों पुराने रिलेशन है और बहुत गहरे और बड़े आत्मीय और आर्थिक, सैन्य और राजनीतिक क्षेत्र में उनका बहुत महत्व है। तो हमें इन सारे उठ रहे प्रश्नों के जवाब देने चाहिए, सरकार को जवाब देना चाहिए, इंक्वायरी होनी चाहिए, और जो भी अगर कोई इसमें साजिश जैसा एंगल लगता है, जांच में सामने आता है, तो दोषियों को कड़ी सजा का प्रावधान हमें करना चाहिए। जी, दुष्यंत नागर जी, मैं आपसे एक और सवाल इसलिए लेना चाहती हूँ क्योंकि आलोचना की थी इन्होंने वॉर की, तो क्या आपको लगता है कि इसमें कुछ कनेक्शन हो सकता है? हालांकि ये सब चीजें जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएंगी। जी बिल्कुल, कांग्रेस सांसद ने, जो एक महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, पूर्व में कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं, उन्होंने सवाल खड़ा किया है। और उनका ट्वीट आप देखिए, उनका स्टेटमेंट सुनिए, वो सीधा इस ओर इंगित कर रहे हैं कि इनकी हत्या में साजिश हो सकती है। तो इसकी हाई लेवल इंक्वायरी होनी चाहिए, सारे फॉरेंसिक सबूत तत्काल इकट्ठे किए जाने चाहिए। जो वहां पे फुटेज है, वीडियो फुटेज है, उनको सरकार को, जांच एजेंसियों को जब्त करना चाहिए, उस पर तत्काल और तेजी से कार्रवाई करनी चाहिए। ये भारत की छवि को प्रभावित करने वाला मामला है। जी जी, तो आप बार बार कह रहे हैं कि भारत की छवि को प्रभावित करने वाला मामला है। एक बार फिर से हम अपने दर्शकों को बता देते हैं कि आखिर ये मामला क्या है। आपको बता दें कि ओडिशा के होटल में 2 रशियन नागरिक ठहरे हुए थे और वे एक ट्रिप पर आए थे, यहाँ पर भारत में घूमने के लिए आए हुए थे, और इस दौरान उनकी देहांत हो जाता है। इनमें से एक है एमपी और बिजनेस टाइकून है रशिया के, जो कि कहा जा रहा है कि खिड़की से गिरकर उनकी मौत हो गई है। और इस बीच इसी को लेकर कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने एक ट्वीट भी किया है और वीडियो है जिसमें वो केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। मनीष तिवारी ने कहा है कि रूसी नागरिकों की मौत सामान्य नहीं हो सकती है, और इससे पहले रूसी दूतावास ने कहा था कि मामले में कोई आपराधिक पहलू भी नहीं देखा गया है। और आपको ये भी बता दें कि मृत लोगों में से एक रूसी टाइकून पावेल एंटोव थे, जिनका होटल की तीसरी मंजिल से गिरकर मौत हुई है। हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़े हुए थे दुष्यंत नागर जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर टीना कपूर जी, हम उनसे दोबारा संपर्क नहीं कर पाए तकनीकी खराबी की वजह से, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया।